any question you have from me, you can unmute yourself. So can you please provide answer copies of fellow aspirants? Answer copies of? Fellow aspirants, that how are they writing tests? हाँ, वी आर प्रोवाइडिंग इट इन चैनल. एक चैनल है अच्छे गुड आंसर कॉपीज का. तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है मेंटरशिप 2025 का, वहां पर आप जाएंगे तो इन दैट चैनल यू विल फाइंड दैट लिंक ऑफ चैनल. तो वहां पर हम लोग सेलेक्टेड कॉपीज को शेयर कर रहे हैं. Okay, sir. Thank you. हाउ मच टाइम कैन आई गिव फॉर वन डेज टारगेट? देखिए विनय, आइडियली तो इट इज वन डे ओनली. लाइक वन डे में यू कैन, इफ इट इज फर्स्ट टाइम फॉर यू देन यू हैव टू स्पेंड 5 to 6 hours. अगर आप कंप्लीटली स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको, तो 5 to 6 hours. अगर इफ यू हैव डन स्टडी एटलीस्ट वंस, आपने पहले कम से कम एक बार पढ़ा हुआ है उसको, देन यू कैन गो फॉर से 3 to 4 hours, है ना. तो ये आपका नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से टारगेट हो सकता है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक. If you are comfortable, you can give less time. If you are not comfortable, you have to give more time. तो ये आपका यहाँ पर पर्सपेक्टिव है. ओके विनय? ओके, सो I think you people are not having any further point to discuss. So what I will do today, I'll open the examples of the OTOB and I'll discuss some examples. The PDF I have been already shared with you on the Telegram channel. So वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं किस तरह से टॉपिक्स को इंटरलिंक करता हूँ. ठीक है? So this is relevant in the paper 2 OTOB HRM. This PDF I have already shared with you on the Telegram channel earlier. I'll share it again with you. देखिए ये these are the examples we have taken for various topics. Okay, even though we have given the particular topic list, the name of the topic that this example can be used for this particular thing, but still we can use it for multiple other purposes. सेम एग्जाम्पल को हम मल्टीपल टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं. ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर द एग्जाम्पल इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज may prioritize hiring individuals with specific traits like attention to detail for roles in the software development and quality assurance. तो ये आपका हो गया ट्रेड थ्योरी का, that what kind of traits are being preferred for hiring. Okay, that is application of traits theory, right? Application of traits theory. Okay, so this is the example which we can use in application of trait theory, that TCS uses the specific traits for hiring the people. Right now, second use क्या कर सकते हैं इसका? We can use it in the HRM also. HRM में भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसको. In case of HRM you can use it in recruitment. We can use it in job specification. आपको याद होगा कि वहां पर हम जॉब एनालिसिस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. व्हेन वी डू द जॉब एनालिसिस, देन बेस्ड अपॉन द जॉब एनालिसिस वी गेट टू आउटकम्स. टू आउटकम्स क्या क्या होते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. तो यहाँ पर जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब स्पेसिफिकेशन टॉक्स अबाउट द qualifications, the traits of the person which is supposed to be hired for that job. So job description और जॉब स्पेसिफिकेशन में से जॉब स्पेसिफिकेशन को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ट्रेड्स बता रहे हैं कि ये ट्रेड्स हम यूज करेंगे. ओके, तो यू कैन यूज दिस एग्जांपल इन द केस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन आल्सो. यानी कि सेम एग्जांपल को हमने यूज किया इन ओबी पर्सनालिटी थ्योरी में, application of trait theory of personality by the organizations, and we have also using it in the job स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट इन एचआरएम. ठीक है? तो ये आपका सेम एग्जांपल कैन बी यूज्ड एट टू प्लेसेस. सेकंड एग्जांपल इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. locus of control. Okay, so SBI may value employees with an internal locus of control. Okay, anyone, what is the meaning of internal locus of control? जिन लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, those who have completed this topic, you can tell what is the meaning of internal locus of control. Just for the sake of participation, I'm asking you. If you're not aware, no problem, it will be kind of learning for you. But if you
have completed OB, then you can try to recall. Sir, is it about how much control that we have of environment? Locus of control. Yeah, locus of control is basically that when something happens, how do I assign the cause? That is it because of me or is it because of the forces outside me? So, for example, if I get late to the office, so either I can say, because of traffic I got late, or I can say that even though there was traffic, but it is my fault. I should have started early from the home, है ना? तो अगर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो हम कहेंगे कि चीजें हमारे कंट्रोल में है, और अगर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो हम कहेंगे कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है? सो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इज कंसिडर्ड better because that gives a chance to improve, that gives an opportunity for looking into what is missing on my part, है ना? Even though external circumstances may be bad, जैसे मैं एग्जांपल दिया कि ट्रैफिक, भाई ट्रैफिक अगर था तो आपको आइडिया होना चाहिए पहले से. आप डेली ऑफिस आते हो तो यू मस्ट नो कि ऑन मंडेज, ऑन सम स्पेसिफिक डेज देयर मे बी ट्रैफिक, तो यू स्टार्ट अर्ली. आप अर्ली स्टार्ट करो, और you do something that this thing do not repeat in the future. So that is internal locus of control. So every organization will always try to hire those people who are having internal locus of control, because then only employees will say that okay, I am responsible and I will do something about it in the future. So coming back to this example, State Bank of India. So locus of control, SBI may value employees with an internal locus of control for the roles involving financial decision making and risk assessment. तो जो रोल्स आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बारे में होते हैं और रिस्क असेसमेंट के बारे में होते हैं, फॉर दोज रोल्स द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विल बी प्रेफर्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. So this is very good example which we can use in the personality theories. Okay, तो ये आपका एक स्पेसिफिक ट्रेट है लोकस ऑफ कंट्रोल में. It can be external or internal, so we can use it as an example. Next example is Google. Google encouraging its employees to participate in 20% time projects, where they can spend a portion of their work week pursuing project of personal interest. यानी कि अपना जो उनके पास टाइम है, whatever time they are devoting in the office, out of that time 20% of the time they can devote in pursuing their own project of the personal interest, right? तो ये आपका एग्जांपल हो गया गूगल का. Now basically what is the purpose? The purpose is to bring the innovative ideas and the culture of creativity and the culture of self efficacy, है ना? What is the meaning of self efficacy? Anyone? सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है? ट्राई कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से. पर्पस ये है कि आप इन्वॉल्व हो, आपको भी इंटरेस्ट आएगा सब चीजों में. सेल्फ सफिशिएंट. ओके, देखिए सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है द एक्सटेंट टू विच आई थिंक that I will be able to execute something. Yes, very good Tanu, आपने सही आंसर दिया. कॉन्फिडेंस that I can do something, है ना? तो सपोज आई टेल यू, मैं कहता हूं आपसे कि ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे वी हैव फुल लेंथ टेस्ट ऑफ पेपर 1, है ना? मैंने आपको टास्क दिया. नाउ the self efficacy on your part will be that how confident you are that I will be able to complete the preparation of the paper. तो सम ऑफ यू विल से कि सर मेरे बस को तो बिल्कुल बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ट्राई भी नहीं करूंगा क्योंकि आई कैन डू इट. एंड सम ऑफ यू विल से कि ओके सर, आई थिंक आई शुड बी एबल टू कंप्लीट इट, आई विल ट्राई इवन दो इट इज नॉट इजी, आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो दैट इज another level of self efficacy. So high self efficacy people, they will always be more confident about executing a task. They will start with confidence and that will be visible in the execution. And low self efficacy people, they will always be doubtful and they will even avoid starting the work, or even if they start it, then they will not be able to complete it. So it's an attitude. Okay, that is self efficacy.
नाउ कमिंग टू दिस एग्जांपल, सो यहाँ पर क्या है, देखिए गूगल ने अगर इनको 20% टाइम दिया कि आपको जो पसंद आए वो करो, आप सपोज आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, सो इन द टैक्सेशन डिपार्टमेंट यू वांट टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर, आई मीन यू वांट टू डेवलप सम प्रोसेस, आप वो कीजिए। यू वांट टू इंटरेक्ट विद सम आउटसाइड एक्सपर्ट, वो कीजिए। लाइक जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको कीजिए, बिकॉज दैट इज योर ऑन टाइम। उसको आप किसी भी तरह के नई नई चीजों में आप इनोवेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल विच वी कैन यूज एट मल्टीपल प्लेसेस। इस एग्जाम्पल को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? दिस एग्जाम्पल कैन बी यूज्ड इन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब क्या होता है? एनीवन? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? How society impacts our thinking, sir. Yes, very true. That how we learn from the society. Once we interact with the society, then how it is impacting our thinking, how it is impacting our learning, etc. So social cognitive theory में, like when people are having their own time, 20% time they have to interact with people outside, people inside, so they will be learning a lot of things from others. They can learn from others. वहां से आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन होगा। ओके, नाउ ये तो हो गया एक कि हम इसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में यूज कर सकते हैं, राइट। और हम इस एग्जांपल को कहां पे यूज कर सकते हैं? थिंक अबाउट अदर चैप्टर्स, think about other chapters of OB, think about other chapters of any other subject, maybe OT, maybe HRM, maybe IR. ओके, देखिए हमें सोचना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत सारी जगह पे हमेशा ही एप्लीकेबल होगा, बट द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जस्ट टू ब्रॉडन आवर होराइजन, है ना, टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड that if we have one example, how we can use it at multiple places. Can you please try? अपनी तरफ से ट्राई करेंगे आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको? कैन इट बी यूज्ड इन लीडरशिप? लीडरशिप में डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन नहीं है। लीडरशिप में आई डोंट फाइंड एनी। मोटिवेशन। यस, वेरी गुड, मोटिवेशन, very very important. It is a good motivational practice because somehow it is going to provide them intrinsic motivation, है ना। एक extrinsic motivation होता है, एक intrinsic motivation होता है, तो it is going to provide them intrinsic motivation. Okay, now what is the intrinsic motivation? Anyone? Like the motivation which we get from our inner self. For example, Yes. it may be of self-need. It's like a lower self-need. It may be of recognition, achievement. Right. No, it's external. Internal is like Yes. quality of life. Self-satisfaction, Yes, sir. happiness, Self-contentment. या सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, है ना। तो ये सब चीजें इंटरनल उसमें आती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आती है। वेरी गुड। ओके, एनी अदर चैप्टर और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ट्राई कीजिए। ओबी के अंदर, एचआरएम के अंदर, आईआर के अंदर, ओटीओबी के तो अंदर। सोशल कॉग्निटिव बिहेवियर हमारा परसेप्शन को भी बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है चीजों को देखने के टुवर्ड्स। ओके ओके ओके, एनीथिंग एल्स? उतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर देखिए अगेन मैं आपकी क्रिएटिविटी को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आभा, आप परसेप्शन में यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक कहाँ पे यूज कर सकते हैं सर। डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट से लिंक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक मोटिवेशन से लिंक कर दिया, हमने सिर्फ मोटिवेशन बोला होता तो आप बोल सकते थे सर कैसे, तो हमने इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोला। अगर आप परसेप्शन बोल रहे हैं तो परसेप्शन में कहाँ पर यूज, कहाँ पर हेल्पफुल होगा? क्या परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में, क्या परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन में, कहाँ पर होगा? सर इसमें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में यूज हो सकता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, मैस्लो में यूज हो सकता है। वंडरफुल। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में इट कैन बी यूज्ड, जो आपकी नीड नंबर 4 और 5 होती है वहां पे यूज हो सकता है। वेरी गुड। सर कल्चर के क्वेश्चन में भी हो सकता है। कल्चर में भी हो सकता है। वेरी गुड। कल्चर ऑफ इनोवेशन, कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन, कल्चर ऑफ इनोवेशन, कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके, सो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप लिख लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग हियर। आप अगर लिखना चाहते हैं तो यू कैन कीप राइटिंग। देखिए अगेन ये एक्सरसाइज करने का मेन पर्पस है कि आप एक एग्जाम्पल को किस तरह से, कितने अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। दैट इज द मेन पर्पस। ओके, एनी अदर चैप्टर यू कैन थिंक ऑफ? कैन वी यूज इट इन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ? वो भी हमारा एक चैप्टर है। यस सर। सर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में भी आएगा।
ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे इसको? कि इफेक्टिवनेस आपके एम्प्लॉयज की इंक्रीज होगी, वो भी हाँ, ज्यादा विच सेटिस्फाइड थ्योरी, रहेंगे। विच थ्योरी ऑफ इफेक्टिवनेस? नहीं पता सर। हाँ, मीन्स आई एम स्टॉपिंग यू, आई एम इंटरवेनिंग इन योर थिंकिंग जस्ट टू मेक इट मोर डिफाइंड। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इफेक्टिवनेस में यूज नहीं हो सकता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कहाँ पर यूज होगी ये आपको सोचना है। जैसे हमने क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में इट इज ए गुड वर्क प्लेस प्रैक्टिस। ओके, कैन वी यूज इट इन एचआरएम समवेयर? एचआरएम में कहीं पे यूज हो सकता है क्या ये? एचआरएम में it can be used in the talent management. You know, HRM and talent management, what is the difference? Anyone? Human resource management and talent management, what is the difference between these two things? देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दैट इज ए वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन विच इज कवरिंग एवरीथिंग. On the other hand, talent management is covering the high potential, high performing employees, which are highly crucial for the organization. So talent management में primarily we are focusing on the high potential, highly important employees only. However, in case of human resource management, it is a comprehensive discipline which even includes talent management. ठीक है? तो ये जो आपका 20% प्रोजेक्ट है, ये टैलेंट मैनेजमेंट में भी काम आएगा, बिकॉज इट विल रिटेन द गुड पीपल, इट विल इंक्रीज द रिटेंशन, राइट? इट विल इंक्रीज द रिटेंशन. तो यहां से आपका लिंक हो गया टैलेंट मैनेजमेंट में. नाउ इन केस ऑफ आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप सोचिए कहां पे इसको यूज कर सकते हैं. चैप्टर का नाम सोचिए. कैन वी यूज इट इन टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर? वहां पर आपका टॉपिक है लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. कैन वी यूज इट देयर? लेबर टर्नओवर एब्सेंटिज्म यूज कर सकते हैं, यस सर। है ना? तो आईआर में भी हमारा हो गया. नाउ कमिंग टू ओटी. ओटी में सोचिए, ओटी में इनफैक्ट आप लोगों ने बता ही दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में हमने यूज किया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यूज इट इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. एक कॉन्सेप्ट हमारा वहां पर है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में एक फीचर होता है दैट पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर, पीपल लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो दिस इज ऑल्सो द this is a good example which we can use in the learning organizations for improving the culture of learning in the organization. ठीक है? देखिए, हमने चारों डिसिप्लिन में इसको यूज कर लिया. और क्या इसको हम कहीं पर और भी यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज इट इन कोस्टिंग? कोस्टिंग में सोचिए, एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या क्या, व्हाट आर द 4 डायमेंशंस ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड? एनीवन? 4 डायमेंशंस है बैलेंस स्कोर कार्ड में, यस और नो? यस सर, लाइक सर दो याद आ रहा है, एक फाइनेंशियल, एक कॉम्पिटिटिवनेस है, और दो याद नहीं आ रहा है सर, लाइक अभी कॉस्टिंग रिवीजन कर रहा हूँ. राइट, राइट. तो एक तो आपका फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है. सेकंड आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. थर्ड आपका ये सब customer इंटरनल प्रोसेसेस है. और फोर्थ आपका इनोवेशन है. service. ठीक है? 4 हमारे कंपोनेंट है बैलेंस स्कोर कार्ड के. बैलेंस स्कोर कार्ड को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, कहां पर, किस टॉपिक में यूज करते हैं? कोस्टिंग में. विच चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट? So basically, मतलब to figure out the markets or the new products launch के लिए, टॉपिक या नाम, फिर किस, मुझे मुझे सिलेबस का टॉपिक नाम बताइए, सिलेबस से लिंक करना चाहता हूं मैं. अच्छा ओके सिलेबस. एक टॉपिक वहां पर है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. यस सर. कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट रिडक्शन के साथ में एक टॉपिक है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ठीक है? तो वहां पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है. सो इन दोस मेथड्स देयर इज वन मेथड बैलेंस स्कोर कार्ड.
है ना, जो क्वालिटेटिव मेथड है। तो यहाँ पर 4 कंपोनेंट है, जिसमें से एक आपका innovation भी component है. So we can use it there also, that if we have this kind of culture, then it will increase the performance as per the balance scorecard. Mind open up हो रहा है? Yes, sir. बुरा भी लग रहा है सर कि याद नहीं आ रहा है ये सब पढ़ के भी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मेरा तो ये 24 घंटे का काम है, तो मैं तो मेरे टिप्स पे है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी ऑन द सेम फील्ड, सेम प्लेस, बट just practice will make you more comfortable in the future, है ना। एफएम में कहाँ पे यूज कर सकते हैं? एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए जब भी इस तरह के टॉपिक होते हैं, अगर मैं किसी भी न्यूमेरिकल चैप्टर की बात करूंगा, न्यूमेरिकल टॉपिक सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो थ्योरी वाले चैप्टर में यूज हो पाएगा। अब एफएम में थ्योरी वाले चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर 1 ही है। चैप्टर 1 में इसको यूज कर सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, it can be one of the very good practice for wealth maximization of the shareholders. If employees are happy, they can contribute better, right? So देखिए आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। द ओनली थिंग इज दैट इट हैज टू बी रेलिवेंट एंड इट हैज टू बी लिंक टू द सिलेबस। आपको सिलेबस का वर्ड पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप लिंक कर पाओगे, है ना। हर एक एग्जांपल से एग्जांपल, यू नो, देयर आर limited number of example which can be used at so many number of places. Anyone who has prepared the list कि कितने जगह पे हमने इसको यूज किया है अभी? How many number of topics, how many number of topics we have touched through this example? I think 7-8 टॉपिक हमने डिस्कस किए। हॉबी में 3 टॉपिक हो गए, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, क्वालिटी वर्क लाइफ। ओटी में कल्चर हो गया, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन 5 हो गया। फिर एचआरएम में हमारा हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर आपका टैलेंट मैनेजमेंट हो गया 7 हो गए। और एफएम पोस्टिंग 9 टॉपिक हो गए। 9 जगह पे हमने आईआर में भी सर, आईआर में लेबर टर्नओवर 10 लेबर टर्नओवर। लिख लीजिए इसको, ये तो बेस्ट एग्जांपल है, सुपरस्टार ऑफ द एग्जांपल्स। इनफैक्ट पता है, मैं इस चीज के लिए कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये लिस्ट। जैसे जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा भी माइंड मतलब सो मैनी टॉपिक से लिंक कर पा रहा है, क्योंकि मैं भी तसल्ली से बैठ के आपके साथ में इसको सोच पा रहा हूँ। सो कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ओपन एंडेड एग्जाम्पल है, तो उसको आप सिलेबस को ओपन कीजिए, ट्राई टू थिंक या कहां से लिंक कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट में लिंक कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप यूज कर लीजिए, वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल। दैट्स वाई देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये एग्जाम्पल की जो लिस्ट है क्या सफिशिएंट है? ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं कह रहा हूं इसमें से आप 20% एग्जाम्पल भी कर लीजिए। आपको कोई करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये यूज करने आने चाहिए। यूज करेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए ही नहीं इसके अलावा, है ना। बट आपको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज गूगल। गूगल के बाद में हम आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माइक्रोसॉफ्ट फॉर टाइप ए पर्सनालिटीज ड्रिवन। टाइप ए पर्सनालिटीज और टाइप बी, एनीवन हु रिमेंबर्स दिस डिफरेंशिएशन? टाइप ए, टाइप बी। The type A are hardworking people that are desirable in the company, and type B are less motivated to work in others. नहीं नहीं, आप थ्योरी वाइज शायद बता रहे हो, आप मुझे लग रहा है। टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए आर in a sense of urgency, they are always in hurry. Type B, they are relaxed, and at the same time we are not saying that type B are not efficient, they may be efficient, it is just a type of personality they have, है ना। जैसे आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डेडलाइन को बहुत ज्यादा सिंसियरली लेके चलते हैं, बहुत टाइट शेड्यूल में चलते हैं, मतलब कुछ लोग रिलैक्स चलते हैं पर स्टिल दे मीट द टाइमलाइंस। तो ये एक अप्रोच है, टाइप ए, टाइप बी वो है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, Microsoft offers recognition and rewards program for high performing employees
such as circle of excellence. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल को पूरा आप पढ़ेंगे, then you will find that it is talking about recognition and rewards program, right, for the high performing employees. Now अगर रिकॉग्निशन रिवार्ड्स की बात आ गई तो अगेन कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं? रिकॉग्निशन रिवार्ड का इंपॉर्टेंस कहाँ पे आता है? Now this appeals to the competitive drive of type A individuals who seek recognition and achievement. ठीक है, अब इसको सोचिए कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहले तो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन में कहाँ पर होगा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक, हाँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। एचआरएम में? दूसरा तो एचआरएम में भी यूज किया जा सकता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, नहीं सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी गुड। परफॉर्मेंस अप्रेजल में इसको यूज कर सकते हैं, इसको कॉम्पनसेशन में भी यूज कर सकते हैं। इट्स ए नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, रिवार्ड है ना, रिकॉग्निशन है। यस सर। तो देन आईआर में जैसे अपने यूज कर सकते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन के लिए, वर्क, यस, अगर उनको पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, इसको यूज कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर में भी, लेबर टर्नओवर में। लेबर टर्नओवर में भी देखिए, लेबर टर्नओवर अगेन इज अ वेरी वेरी ओपन एंडेड टॉपिक, क्योंकि लेबर टर्नओवर किसी भी रीजन से हो सकता है, सो मेनी रीजंस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। तो एनी गुड प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड इन लेबर फॉर रिड्यूसिंग द लेबर टर्नओवर। कोई भी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस यूज करोगे जहां पर एम्प्लॉइज को बेनिफिट होने वाला है, तो लेबर टर्नओवर उससे इंपैक्ट होने के पूरे पूरे चांस है। तो लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म दोनों में ये वर्क कर सकता है। हाँ, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज Amazon. Amazon encourages a culture of rapid innovation and experimentation, attracting type A personalities who thrive in dynamic high pressure environment. ठीक है, तो टाइप ए वाले केस में भी आप इसको यूज करेंगे। और इनोवेशन की बात आ रही है तो अगेन wherever we can use innovation we will use it। जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड में हम यूज कर सकते हैं इसको, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, लर्निंग कल्चर में यूज कर सकते हैं, है ना। तो जो हमने गूगल वाले केस में एग्जांपल को लिंक किया था, वैसे ही जो जो टॉपिक से आप लिंक कर पाए वो वहां से आप इसको लिंक करेंगे, राइट। Type B personalities, which are relaxed, patient. Now, in this case, Google offers flexible work hours, remote work options, catering to individuals who value work-life balance and autonomy. Again, इसको भी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में, मोटिवेशन में। In case of HRM, we can use in latest HRM practices. Compensation, है ना। SAP, अच्छा, जॉब डिजाइन में भी इसको यूज कर सकते हैं। एचआरएम की बात करें तो जॉब डिजाइन में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जॉब डिजाइनिंग, दिस रिमोट वर्किंग, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ जॉब डिजाइनिंग, जॉब एनरिचमेंट, है ना। SAP offers stress management workshops and mindful programs to help employees relax and manage stress. So this is a very simple type B personality में तो यूज होगा ही होगा, and it will also be used in quality of work life। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में भी इसको यूज करेंगे हम लोग, राइट। Next, we have perception. Now, perception, in case of perception, again, there are many examples. Like first example is FBI. FBI Diversity and Inclusion Initiative. The FBI has implemented diversity and inclusion program to address the biases and stereotypes within its workforce. तो again, यहाँ पर जो आपके एरर्स होती हैं परसेप्शन में, जो परसेप्चुअल एरर्स होती हैं, तो परसेप्चुअल एरर में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है स्टीरियोटाइपिंग, है ना। तो टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, द FBI is using diversity and inclusion initiative, where they will be addressing this kind of problem. Next is Indian government department. They are using performance feedback systems. Various government departments in India have implemented performance feedback systems for government employees. These systems use objective criteria to ensure fair and transparent performance evaluation. So this is an example of performance evaluation also, performance appraisal, HRM. This is an example of the perception improvement, that through this program, government is actually trying to improve the perception of the people about the government, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी है।
Next is Infosys. Infosys is having 360-degree feedback. So this is an example of performance feedback again. 360-degree feedback आप हम लोग डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल HRM में, and it will also improve the perception of the people about the Infosys. Then Amazon India customer feedback analysis. तो जितने भी feedback programs हैं वो सब आपके perception में help करेंगे. Reliance Industries crisis management public relations program, not very important. Then this Google 20% program, ये तो हमने डिस्कस किया है. This can be used in, हाँ, it can also be used in self determination theory. मोटिवेशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में भी इसको यूज कर सकते हैं. Salesforce is a company name. It has brought vision, values, methods, obstacles, measures, and encourages employees to set clear goals and align their effort with the company's vision. This practice supports goal setting theory. तो ये गोल सेटिंग थ्योरी का भी एग्जांपल हो गया. और बताइए कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं. ये भी एक अच्छा एग्जांपल है जो हम मल्टीपल पेजेस पे यूज कर सकते हैं. बताइए कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं. ये गोल सेटिंग थ्योरी होगा मोटिवेशन में. और बताइए कहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओटी में कहाँ पे यूज कर सकते हैं. HRM में कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको हम लोग. सर जैसे ओबी में म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट में शो कर सकते हैं. हाँ, राइट राइट. चैप्टर चैप्टर 1. ओके फाइन. ओटी में इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन एंड्स मींस चेन, वहां पे इसको लिंक कर सकते हैं. देन MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल. TCS Elevate program offers a structured approach to career development with defined milestones and opportunities to enhance skills aligned with the expectancy theory of linking effort to the performance and reward. तो यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. और इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग. HRM में यूज कर सकते हैं. देखिए जो OB वाले एग्जांपल्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी एग्जांपल कैन बी यूज्ड समवेयर इन द HRM. तो HRM में कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको हम लोग. देयर इज अ टॉपिक कैरियर प्लानिंग, है ना. तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ में आपका एक टॉपिक है कैरियर प्लानिंग. तो कैरियर प्लानिंग में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग. that how the companies are planning the career of the employees. Okay, so this is one such example. तो देखिए हमने जो एग्जांपल्स यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं, हमने प्राइमा फेसी एक टॉपिक को लेके उसको क्लासिफाई कर दिए हैं एक टॉपिक के अंदर. बट इट डू नॉट मीन दैट वी कैन नॉट यूज इट फॉर सम अदर पर्पस. हम उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे टॉपिक में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा. ओके, सो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ हिंट. आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे सेम PDF को. एंड बिफोर दैट इफ पॉसिबल यू प्लीज आल्सो ट्राई फ्रॉम योर साइड so that this discussion become more meaningful. Okay, now last query I will take Reshma Joy. Sir, finding it difficult to invest 3 to 4 hours since prelims test series has started. What to do? I am not writing answers now. I have only FMI left, which I am doing currently since as a first round study. All other subtopics done. देखिए यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन ये भी कि हाउ आई डोंट नो हाउ मच आई रिमेम्बर. ठीक है, देखिए डोंट वरी अबाउट इट. As long as you are following the process, you will remember things in the due course, right? Now you are finding it difficult to invest 3 to 4 hours. कोई बात नहीं, you invest 2 to 3 hours because I think you have completed syllabus, you have done daily answer writing and everything, so it is fine, no problem. आपने sufficient practice कर ली है ना. 2 to 3 hours is enough, right? वन राउंड हो चुका है तो इट इज वेरी गुड, है ना. तो अभी 2 to 3 hours आप स्पेंड कीजिए, FMI कंप्लीट कीजिए, एंड देन
if possible, you try to write some subject-wise test before the prelims. If not all the test, then maybe three test, 4 test you can write. Okay, so this is what you can do. Okay, any other question, anyone, before we close up the session of today? Sir, the recent example of Zomato, in which they have that vacancy of without any pay. So how can we use it in any example or so? Okay, can you just elaborate it? Actually मैंने उसको डिटेल में नहीं देखा है, मैंने I have just seen the heading, but मैंने उसको डिटेल में नहीं देखा कि इसका लॉजिक क्या है and all, वो सब मुझे नहीं पता है. तो if you have an idea, you can tell me, otherwise we can discuss in next class. So they have said that for 1 year they will give no pay and you have to give 20 lakh deposit or something like this. Okay, उसका लॉजिक क्या है? Like why will anyone do that? उसका So लॉजिक क्या है? that is what I was trying to ask you, that how it is working and what are they trying to do. हाँ, तो देखिए ये क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, तो वी हैव टू फर्स्ट गेट इनटू डिटेल ऑफ इट. उन्होंने अगर ये अनाउंस किया है तो उन्होंने इसका पर्पस भी बताया होगा, उसका लॉजिक भी बताया होगा. Okay, sir. ठीक है, तो उसको आई थिंक स्टडी करके देन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, Okay, sir. Thank you. ओके. ओके एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर.